मदर टेरेसा गरीबों की माँ थी। There, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. A global icon. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. Abortion has become the greatest destroyer of peace because it destroys the presence The of most movement of 20th Century. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. और अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने एक रहस्य छोड़ा। Teresa de Calcutta, santa, essere discernimus et definimus. क्या उनकी स्टोरी उनकी लेगेसी को जस्टिफाई करती है? Not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. क्या मदर टेरेसा को संघ का दर्जा दिया जाना था? Higher and higher, the funds didn't find their way out into the. क्या वो सच में मसीहा थी? Because I feel that Sister Teresa is a walking saint. If I'm in this group, that I will come closer to God. या फिर वो एक शैतान थी जिसे गरीबों की पीड़ा देखकर मजा आता था? डॉक्टर जेके प्रतर्स एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और 1972 से गरीबों का कलकत्ता में इलाज कर रहे थे और वे पहली बार बीबीसी के लेबोरेटरी में मदर टेरेसा से मिले। जब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने डॉक्टर के साथ काम करना जब मदर टेरेसा के साथ काम किया तो उन्हें तुरंत पता लग गया कि जो मदर टेरेसा के बारे में दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। In terms of modern medical care, the defense always was, we're not a medical order. डॉक्टर ने देखा कि मदर टेरेसा के आश्रम में मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मरीज ऐसे ही पड़े हुए थे। The patients had shaved heads. There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. डॉक्टर ने देखा कि एक ही इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था और कई इंजेक्शनों में धार तक नहीं होती थी। They used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap, and I asked one of them why she was doing it. डॉक्टर बताते हैं कि मरीजों को पेन किलर तक नहीं दिया गया। एक महिला जली हुई वहां आई थी। There was one young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggle the morphine into this woman and help her with. डॉक्टर ने बताया कि बच्चे एक के ऊपर एक पड़े हुए थे लेकिन नर्सेस उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देती थी। They would tell us that we could pick up the babies to feed or to change them, but when the feeding or changing was done, we must immediately put those babies down, as holding a baby could lead to attachment. कई बच्चों को बेड से बांध दिया जाता था और मदर टेरेसा को दुनिया भर से लाखों रुपए डोनेशन आ रहा था लेकिन वह मरीजों को फैसिलिटी नहीं दे पा रही थी। He had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. And she said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 50. मदर टेरेसा के पास लाखों रुपए थे लेकिन कई बच्चों को उन्होंने साधारण ऑपरेशन नहीं किए जिनसे वह ठीक हो सकते थे। यह सवाल जब मदर टेरेसा से पूछा गया तो उन्होंने एक एस्टिमेट में कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। आप ही सुनिए। The work is only a means to put our love for Christ into action. मदर टेरेसा को दुनिया भर से दवाइयों और पैसे भी मिलते थे, लाखों रुपए और दवाइयाँ, लेकिन उन्होंने इन दवाइयों का कभी प्रयोग ही नहीं किया मजदूरों के लिए जो गरीब बच्चे थे। 1982 में भोपाल में गैस लीक के कारण लाखों मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग इस गैस के प्रभाव से मर गए। इस हादसे में लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरे और लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इसमें मदर टेरेसा ने क्या कहा? It's your message to the people of Bhopal. Forgive.
हजारों लोग मर गए, लेकिन मदर टेरेसा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस हादसे के बाद कई लोगों ने मदर टेरेसा के हॉस्पिटल को छोड़ दिया और उनमें से एक MC नॉम, जो उसके हॉस्पिटल के पास थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जो मैंने इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ा, कि इन नर्सों की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब होती थी। उन्हें सुबह भीख मांगने भेजा जाता था। Eating whatever was begged or received, often including spoiled food. We used to have every day a bread and oil, and these things that we got from the begging couldn't swallow it. We were eating it. और कोई भी बाहर नहाने नहीं जा सकती थी और ना ही कोई बाहर वाली चीज़ों को देख सकती थी। उन्हें सोसाइटी से दूर रखा जाता था। All communication with the outside world, except that once a month home letter, was prohibited, including talking with lay co-workers about anything other than work, limiting contact with family to once a month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. Allowing us to be human. इन नर्स को अपनी कमर पर लोहे के तार बांधने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ का यह नियम था और यही डिसिप्लिन था। Can you explain the discipline? We had a little, sort of a rope whip with which we would beat ourselves every day. नर्स को सुबह अपने पीठ पर कोड़े मारने पड़ते थे, लेकिन मदर टेरेसा के ये नियम उन्हें फॉलो ही करने पड़ते। क्यों मदर टेरेसा डिसिप्लिन के नाम पर इन नर्सों के साथ अत्याचार कर रही थी, इसका मैंने गहरा विश्लेषण किया और उन्होंने स्वयं ही एक इंटरव्यू में It is necessary for us to have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. मदर टेरेसा स्वयं चाहती थी कि ये नर्स अपनी आप पर जुल्म करें और जो बीमार व्यक्ति हैं वो भी, क्योंकि जीसस ने हमारे लिए पीड़ा सही थी और उन्हें नुकीले कांटों पर लटकाया गया था। मदर टेरेसा जीसस पर लटके हुए जीसस से खुश थी। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। उनका वास्तविक नेम एग्निस था। उनकी माँ एक सोशल लीडर थी और पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन आए दिन विश्व युद्ध हो रहे थे, जिस कारण उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था। और एक युद्ध में उनके पिता मारे गए और उनका परिवार काफ़ी खुश था, लेकिन इसके बाद में परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई और इसी कारण से उनकी माँ अकेली पड़ गई और वह गॉड और उन्हें जीसस में विश्वास था और यही विश्वास एग्निस के मन में भर रहा था और वह चर्च में इधर उधर किताबें पढ़ती और जीसस के बारे में और अच्छे से स्टडी करने लगी और धीरे धीरे उन्हें चर्च के सभी कामकाज सिखाने लगी। इस खूबसूरत संसार को बनाने के बाद सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य को ही बनाया, लेकिन मनुष्य पाप करने लगा और जिस कारण ईश्वर मनुष्य से दूर हो गई, यही कारण था। उसके बाद में ईश्वर ने अपने पुत्र जीसस को भेजा। एक वेजिन औरत की कोख में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम बीजिस था। बीजिस 12 वर्ष की उम्र में अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों से ज़्यादा ज्ञानी था, अधिक जानने लगा। वह ईश्वर की निंदा करने लगा और लोगों की मदद करने लगा, जिस कारण से लोग उसे फॉलो करने लगे। कई लोगों को उसने अपने हाथ पैर और सबसे मदद की, जिस कारण लोग उसे भगवान समझने लगे। लेकिन ये सब जोमिस लीडर को देखा नहीं जा रहा था और कुछ समय बाद रोमन अथॉरिटीज ने जीसस को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दर्दनाक मौत दे दी, कीली पर लटकाकर। लेकिन यही तो जीसस चाहते थे। इंसानों के पापों के कारण ही ईश्वर मनुष्य से दूर चले गए और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि उसने जीवन में एक भी पाप ना किया हो। इसलिए भगवान ने जीसस को धरती पर भेजा और हमारे पापों को मिटाने के लिए जीसस बलिदान दे सके। जीसस को रात भर कोड़ों से पीटा गया और उसे भयानक चोटें लगाई गईं और सर पर नुकीलेदार कोड़ों और भयानक तरीके से पीटकर उसे घसीटकर कुत्ते की तरह एक कील पर लटका दिया गया और जिस कारण से उनकी भयानक तरीके से मौत हो गई। जीसस के हाथ और पैरों को कीलों के माध्यम से स्पॉट पर लटका दिया गया।
जीसस ने इंसानों की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। और पता है एग्निस ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कि अगर ईश्वर के पास जाना है तो पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। See Christ in the broken body and we touch him, and that touch comes from the deep faith that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. मदर टेरेसा का कहना था कि नर्स को जख्म देना, उसे जीसस की तरह ईश्वर की ओर ले जाना ही ईश्वर का प्रेम है। लेकिन जितना भी मैंने लिखित पढ़ा, इतने में कहीं नहीं लिखा कि इंसानों को ईश्वर के करीब जाने के लिए उन्हें पीड़ा सहनी चाहिए। लेकिन जीसस का कहना था कि इंसान एक दूसरे से प्रेम करे और पाप करने से डरे। इस संदेश का पालन करने के बजाय मदर टेरेसा ने ऐसे पाप किए जिससे ईश्वर तो खुश नहीं होंगे। This is the BBC television service. 1969 यह वह वर्ष था जहां मदर टेरेसा को पूरी दुनिया जानने लगी और इसी वर्ष मदर टेरेसा पर एक डॉक्यूमेंट्री बाहर आई तो मदर टेरेसा वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गई। अब मदर टेरेसा के चर्चे दुनिया भर में फैलने लगे। हर साल अनेकों देशों में नए आश्रम खुलने लगे और हर साल सिस्टर्स मदर टेरेसा के आश्रम को ज्वाइन करने लगी। All our works are done for the love of God. For the love. Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. इसके बाद मदर टेरेसा को दुनिया भर में अवार्ड दिए जाने लगे, इंक्लूडिंग भारत रत्न। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें अलग अलग जगह से डोनेशन मिलने लगे। न्यूयॉर्क से लगभग एक संस्था ने उन्हें करीबन $50 बिलियन एक वर्ष में डोनेशन दिया। $50 मिलियन। मिसेस चैरिटी को एक साल में लगभग $100 बिलियन मिले थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी रकम एक साल में मिली तो उनको अलग अलग सालों में कितने पैसा मिला होगा। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 90s के दशक में करीबन $1 बिलियन उन्हें डोनेशन के रूप में। लेकिन ये पैसा गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. The famine caused by drought is the worst in living memory, and now the rains have failed again for the third year in succession. एक बार जब इथियोपिया में भयंकर बीमारी आई और भूख से लोग मर रहे थे तो मदर टेरेसा ने वहां जाकर उनकी देखा और इस कारण न्यूज़ ने भी उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन जो डोनेशन उनकी संस्था को मिला था वह मदर टेरेसा ने नहीं दिया और एक उनकी सीनियर सिस्टर ने कहा कि हम अफ्रीकन लोगों को डोनेशन जो उनके पैसे हैं उन्हें नहीं देंगे, पर ये पैसा तो उनकी मदद के लिए आया था ना। She was a very cynical person when it came to charity and the poor. All she was interested in was promotion of her faith in सोचिए herself. कि इतना पैसा आता था मदर टेरेसा के पास जो कि उन्होंने लाखों रुपए यूज ही नहीं किए, तो सोचिए ये पैसा जाता कहाँ था। जबकि भारत सरकार का एक नियम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट पब्लिक करने होते हैं, लेकिन मदर टेरेसा ने भारत के अन्य देशों में भी अपने अकाउंटों को सीक्रेट। लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए कि पैसा कहाँ जाता है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम वाल्टर मोमेंट है, उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि सारा पैसा वेस्टिंग बैंक में जाता है और यह बैंक विदेशों में है और यह किसी भी अकाउंट होल्डर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी भी देश की सरकार को। He's been accused by US and Italian police of money laundering, mafia, for a Masonic lodge. It's been suicide. They're unexplained. यह कंफर्म करती है कि दुनिया भर से जितना भी पैसा आता था वह वेस्टर्न बैंक में जमा होता था जो कि चर्च के लिए ही बना था। एक ऑथर G.N. नगी अपनी बुक द ओरिजिनल सिंग में लिखते हैं कि यदि वर्टिकल बैंक से मदर टेरेसा सारा पैसा निकाल लेती तो बैंक घाटे में चला जाता।
अब सोचिए कि कितना पैसा जमा करती होंगी मदर टेरेसा इस बैंक में, आप ही सोचिए। ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा को इन पैसों से दिक्कत थी, जबकि मदर टेरेसा स्वयं चाहती थी कि और पैसा आए और उस पैसे को वह करप्ट वर्टिकल बैंक में जमा कर सके। इसके लिए वह भ्रष्टाचारी लोगों से भी मिलने के लिए तैयार थी। चार्ल्स कीटिंग ने करोड़ों डॉलर्स उन्हें दिए थे, वह एक भ्रष्ट था। ऐसा नहीं थी, मदर टेरेसा ने उनके प्राइवेट जेट्स भी इस्तेमाल किए। यह व्यक्ति उस समय का मोस्ट भ्रष्टाचारी व्यक्ति था। Mother T also accepted over $1 million from Charles Keating, whose junk bond debacle caused more than 21,000 old folks to lose their life savings. इस व्यक्ति ने गरीबों का पैसा लूटा, लेकिन जब चार्ल्स की कोर्ट में पेशी हुई तब मदर टेरेसा ने जज को एक पत्र लिखा, जिसमें मदर टेरेसा ने लिखा, डियर लेंसिटो, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है कि मिस्टर चार्ल्स क्या काम करते हैं और न ही उनके बिजनेस के बारे में पता है। मुझे केवल उतना पता है कि उन्होंने गरीबों की उदारता दिखाई है। मिस्टर कीट्स, मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपको यह पत्र लिख रही हूँ। ये सब मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जीसस ये सब कहते हैं, और इसीलिए मैं आपको यह पत्र में मदर टेरेसा माफ़ करने के लिए कह रही थी चार्ल्स को। वापसी में पोल्ट ने मदर टेरेसा को एक पत्र लिखा, डियर मदर टेरेसा, मैं लॉस एंजल्स में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अडानी हूँ और आपको दान देने वाले मिस्टर चार्ल्स का प्रोसिक्यूटर को बताऊँ। मैंने आपको पत्र पढ़ा था और 17,000 लोगों से $252 मिलियन चुराने में दोषी पाए गए हैं, और यह फ्रॉड उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है और ना ही मदर टेरेसा ने गरीबों से लिया हुआ पैसा वापस किया जो कि चार्ल्स ने उन्हें दिया था। मदर टेरेसा दुनिया भर में ढिढोरा पीटती रही कि वह गरीबों की सहायता करती है। मदर टेरेसा और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होती रही। बात करते हैं फादर डॉलन मेकन्स की। यह एक पावरफुल स्पीकर भी थे और यह दुनिया भर में घूमकर जवान लड़कियों को मदर टेरेसा करने के लिए कहते थे। कुछ ही दिनों के बाद यह मदर टेरेसा की टीम के लिए काम करने लगे। लड़कियों को मदर टेरेसा के साथ रहने के लिए प्रेरित करते थे और कुछ समय बाद वह कुछ लड़कों को अपने साथ रखने लगे और उनके माता पिता से कहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद में वह लड़कों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करते थे। जब इसकी जानकारी लगी तो फाइनली 2009 में जब वह लड़की और लड़कियों को सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में इन्हें सज़ा दी गई। सोचिए कि यह इतने वर्षों तक बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करते रहे और कैथोलिक मिनिस्ट्री को कोई खबर नहीं लगी। इतना बड़ा बाद 1993 में इन्हें एक कंप्लेंट के आधार पर मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। इसके बाद मदर टेरेसा ने 2 फरवरी 1994 को एक पत्र लिखा उनको, जिन्होंने फादर मैकॉय को मिनिस्ट्री से निकाल दिया। मैं लिखा था, डियर फादर ब्रैडली, कह रही हूँ कि मुझे पता लगा है कि आपने मिनिस्ट्री से निकाल दिया है उन्हें। मैं चाहती हूँ कि उन्हें दोबारा से मिनिस्ट्री में शामिल किया जाए और दोबारा से मैं जानती हूँ इससे आपकी मिनिस्ट्री की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और रेपुटेशन ख़राब हुई है। फाइनली मदर टेरेसा के इस पत्र के बाद उन्हें दोबारा से मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया गया और उन्होंने फिर 10 साल बच्चों को सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए बाध्य किया और यह बात मिनिस्ट्री को माननी पड़ी कि उन्हें दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया जाए। फाइनली उन्हें 1994 में पार्टी में शामिल कर लिया गया और फिर उन्होंने 10 साल और बच्चों को सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए बाध्य किया, क्योंकि मदर टेरेसा को इन्हीं की सपोर्ट से डोनेशन मिलते थे और डोनेशन के लिए यह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मदर टेरेसा का एक ही सपना था कि और पैसे आएं और पैसे आएं, चाहे किसी भी प्रकार से आएं। मदर टेरेसा एक मिशनरी थी और मिशनरी का काम होता है दुनिया भर में घूमकर लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराना। लो उन्हीं से सुन लो। Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. Because St. Peter will not let them go in
So we call baptism because it was a mystery. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. मदर टेरेसा इन गरीब और लाचार लोगों से कह रही हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो कन्वर्ट हो जाओ और क्रिश्चियन बन जाओ। ये क्या थोड़ी सी जगह और खाने के लिए लोगों को कन्वर्ट करना सही है? आप ही बताओ, क्या मदर टेरेसा को गॉड मानना चाहिए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। जय हिंद।